Good evening, students. We are going to start today the new topic. Actually, the subtopic of light, the human eye and colorful world. Lecture number 1. Let me discuss today what topics to be covered in today's topic. Structure of human eye, how it is. We have to discuss in detail. Functions of human eye, accumulation of human eye, and power of accumulations of the human eye. That topics we have to cover today. From the pictures also we have to come to, we are observing the pictures. Here also we are finding that the white color, okay, the ciliary muscles are there. That iris, that colorful, this is known as the iris, that is the pupil, okay, that is this pupil is passing, opening, and here the inside the lens. That will detail, discuss now. Here, let me discuss before. Let me recall few points. The human eye using the lights and enables to see the object around us. That is it is our sense organ. Okay, because of the eye only we are able to see the different colors and the structures also. The human eye is the most valuable and sensitive the sense organs of the human body. It is unable to see the wonderful worlds of the colored around us. That is color. We are just the human beings. They have the color cell cone. Because of that only we are able to see. It is not for all the kinds of the animals. Okay, it is different for different animals, depending upon the animals. And it is like the camera, that is a convex lens is there. The lens systems and forming an inverted real image of the light. How it will be the always inverted real image in a light in our retina, sensitive to the screen, and it works on the principles of refractions of the lights from the convex lens. The same way, now we'll discuss in details now how it will be work. The structure of human eye. This structure. Okay. Here, if you are finding the white color, those we are finding that one, the upper cilia. This color is shown with that color one. This is a cilia. Okay, and the inside that the structure, here you are finding that some fluid-like substance here inside. This is aqueous humors. Okay, the watery substance is there. That will be most responsible for the color. It is transparent substance. It is a watery substance. It is transparent substance. It is known as the cornea. This one, and here this is the iris. This one we are finding that one. This is the iris. It is the most responsible for to adjustment the intensity of the light. लाइट की इंटेंसिटी एडजस्ट करने के लिए कितना लाइट लगता है अपने को, उस पर डिपेंड किस पे करता है, एरिस पे. व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी ब्राइटर, द एरिस विल बी द expand, iris will be expand and the shutter will be nearly closed down, and this much some amount of light only will enter in our eyes. When the light of intensity is very dim, then less bright, then automatically it will be going to expand and maximum amount of light will be passed through our eyes. For the contraction and relaxation, for the iris is responsible for mostly the light passing from that iris. This is a pupil is a opening, small opening, and it is a relaxation and contraction of the iris. It will be finding that the black spot in our eyes inside that midpoint of the iris. This is known as the pupil. Okay, and it is a lens. ये क्या है आपका lens है ना, and this aqueous humors approximately most of light are coming from the air medium. Maximum lights are bending in the air only. इसका refractive index कितना होता है approximately, इसका refractive index कितना होता है तुम्हारा refractive index of यहाँ का होता है 1.37 approximately. That refractive index depends on the lens refractive index depends upon means approximately around 1.4 to 1.42 40 to 42 approximately the refractive index. And this that will be completely like jelly like substance, liquid. Aqueous means known as the watery substance. यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, पानी जैसा होता है. यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये थोड़ा ग्लासी टाइप यानी थोड़ा सा हार्ड होता है ना, थोड़ा सा ग्लासी टाइप, थोड़ा सा हार्ड होता है. विट्रियल ह्यूमस बोलती है इसे अपन. ये थोड़ा सा ग्लासी टाइप, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 1.36 के आसपास है ना. तो
सॉरी 3 के आसपास, 1.33 के आसपास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अंदर. द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, इफ दिस इज आवर द ओपनिंग कैनल, यहाँ पे कैनल होता है ना, यहाँ पे जो होता है इसे बोलते हैं अपन कैनल. तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे, यहाँ पे तुम्हारे ये क्या है, तुम्हारा ये कलर जो दिख रहा है, ये पूरा जो कलर है तुम्हारा, दिस इज नोन एज द रेटिना. दिस इज अ ब्लाइंड स्पॉट, जिसे क्या है तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट, एंड दिस इज ऑप्टिकल नर्व. यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहे हैं आपको, जो सेंस कर रहा है, तो यहाँ पे इमेज कैसी आएगी आपके, हमेशा इमेज विल बी द फोकस कहाँ है पे, यहाँ पे आएगा, है ना. तो यहाँ पे इसका फोकल इमेज डिस्टेंस ऑलवेज बी द सेम. द इमेज डिस्टेंस क्या है, v कितना हो गया यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर. इसका अप्रोक्सीमेटली डायमीटर कितना है 2.5. हर एक का थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अपन एवरेज डायमीटर कितना लेते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई इसका 2.5. डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, इट इज द रेंज बिटवीन 2.3 टू 2.5. तो अपन अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं, छोटे बच्चों का डायमीटर थोड़ा कम होता है ना. जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है उसका डायमीटर, फिर अप्रोक्सीमेटली द डायमीटर ऑफ दैट द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर. यहाँ इसका मतलब आपका इमेज जो भी आ रही है वहाँ पे क्या आ रही है आपकी रेटिना पे आ रही है. इमेज कहाँ पे आ रही है आपकी रेटिना पे. तो जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कुछ भी होने दो, इमेज डिस्टेंस क्या होगा आपका ऑलवेज 2.5, है ना. हमेशा याद रखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, है ना. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा 2.5 सेंटीमीटर होगा. इसका फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.33, इसका फोकल लेंथ एक्वायर्ड सिम्बल्स का 1.37, इसका फोकल लेंथ 1.40 के आसपास. तो एवरेज फोकल लेंथ इसका अपन निकालते हैं तो 1.367 के आसपास कही जाता होगा, समझो अप्रोक्सीमेटली उसका फोकल लेंथ वहीं पे जाएगा, है ना. तो इसके बाद और यहाँ पे क्या है सिलिस्टर होल्डर मसल्स, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं उसको फोकल लेंथ, ये क्या है एडजस्टेबल फोकल लेंथ, इसे क्या करते हैं तुम्हारे खींचते स्ट्रेचिंग दैट वन. तो इसका क्या इलॉन्ग, इसको खींचने के बाद में क्या हो जाएगा, ऐसा फ्लैट हो जाएगा. फ्लैट होगा तो क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा दूर जाएगा, है ना. रिलैक्स होते ही तो क्या हो जाएगा, उसको ब्लश हो जाएगा, बॉल के साथ नीचे दब जाएगा. इसको प्रेस करे तो क्या हो जाएगा, ये सिलियर मसल और होल्डर मसल. होल्डर मसल क्या है, उसको पकड़ के रखने वाली, इसको सिलियर मसल से बोलते हैं. ये क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं. ऑब्जेक्ट तो आपको नजदीक का देखना है. अभी मैं क्या नजदीक का पेन भी देख सकता हूँ और दूर का ऑब्जेक्ट भी देख सकता हूँ. नजदीक का देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करता है प्रेशर से सिलियर मसल क्या करता है तुम्हारा रिलैक्स हो जाता है, पूरा कंप्लीटली रिलैक्स होना. रिलैक्स होने के बाद में इसका बॉल शेप का साइज क्या होगा तुम्हारा बढ़ेगा, शेप का साइज बढ़ेगा. और क्या तुम्हारा इसका पावर ऑफ एक्टिवेशन तुम्हारा क्या एग्जैक्टली रिटर्न पे आएगा. द ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी इट विल बी क्या होगा, खींच लेगा. इसे खींच लेने के बाद में क्या होगा, ऐसा इसको यहाँ पे लंबा होने के बाद में इट विल बी फ्लैट हो जाएगा. फ्लैट होने के बाद में फिर इसका रेटिना पे फोकस का होगा, हमेशा यहाँ पे रेटिना पे ही होगा, है ना. तो इस तरह से अपन कोई भी इमेज अपने को दिख रही है, कहाँ इमेज डिस्टेंस कितना होगा, हमेशा इसका 2.5 सेंटीमीटर, है ना. दिस आर द बेसिक्स अबाउट दैट about eye. Here now structure of one is the same. Now the photoreceptor cells actually the RGB अपने लिए वो रिस्पॉन्सिबल 3 सेल कौन से, रेड ब्लू एंड ग्रीन. तो यहाँ पे अपने पास ह्यूमन बॉडीज में क्या है तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स आर देयर, कोन सेल एंड रॉड सेल, है ना. तो कोन कैसे होते हैं तुम्हारे, कोन का पता है हमारे ट्रायंगुलर टाइप, इसे बोलते हैं अपन कोन. ये टाइप के सेल होते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन कोन. और रॉड कैसा होता है आपका, ये होगा तुम्हारा रॉड टाइप ऑफ सेल. तो कोन टाइप ऑफ सेल्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर. कलर के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे कोन टाइप ऑफ सेल, है ना. बट क्या है कोन टाइप ऑफ सेल क्या कर सकते तुम्हारे, इट विल बी वर्किंग ओनली इन अ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. डिम इंटेंसिटी में काम नहीं करते. रात में अपन कलर सेंस होता है क्या, नहीं होता है ना. दैट सेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर. कोई भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल तुम्हारा रॉड सेल. तो कौन सेल का जो परसेंटेज है हर एक एनिमल्स के लिए उसका अलग कॉन्सेंट्रेशन किसी से. अभी आपने पास देखे होंगे, आपने समझो यहाँ पे बताया आपके पास आर है ना, यहाँ पे चलो कोई बात नहीं रेड है, यहाँ पे वही दिखा है ना. हाँ ये तुम्हारे कौन सेल है जो क्या तुम्हारे कलर रिस्पॉन्स करने वाले. ये बीच में क्या तुम्हारे क्या है रॉड, ये तुम्हारे सब नर्व्स को कनेक्ट है, रेटिना को कनेक्ट है. तो यहाँ से जो भी इमेज आएगी ब्रेन में आपकी तैयार होगी. आपके ब्रेन में इमेज क्या है तैयार कैसी होती है आपकी रियल इन्वर्टेड, बट अपना दिमाग क्या करता है उसे सीधा करके आपको डिस्क्राइब करता है इमेज के बारे में. द रॉड सेल दैट इज दिस टाइप ऑफ द सेल इज नोन एज रॉड सेल. The rod shaped cells are present in the retinas in the eyes which are the sensitive to the dim light. ये sensitive dim light में भी काम करेगा ये रॉड. ये इसका काम क्या है बेसिकली
स्ट्रक्चर दिखाने का काम है, ऑब्जेक्ट कैसा है उसका स्ट्रक्चर। कलर दिखाता है क्या ये? नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाता है। एंड कोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कलर। द कोन शेप सेल्स आर प्रेजेंट इन दैट रेटिनास ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव फॉर द ब्राइट लाइट। सिर्फ ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, डिम लाइट में उस कोन सेल काम करेगा क्या? नहीं करेगा। और नॉर्मल लाइट और ब्राइट लाइट के लिए वो सेंसिटिव है। द कोन सेल्स आर कॉज द सेंसिटिविटीज ऑफ द कलर्स, कलर दिखा रहा है, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन आवर आईज एंड द कोन डज नॉट फंक्शंस इन द डिम लाइट। वही बता रहा है, ब्राइट लाइट में काम करता है, इसका मतलब डिम लाइट में कोन काम नहीं करता है। इतना ही इसमें याद रखना है। यहाँ पे दिखा है आपके कोन का शेप भी आपको दिख रहा है, इस तरह से क्या है तुम्हारा एक कोनिकल स्ट्रक्चर है ना, ये कोन टाइप। आपको कोन मालूम है, मैथ्स में पढ़े होंगे आपने कोन, है ना, कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली आपको प्रिज्म में पता होगा, प्रिज्म भी क्या करता है तुम्हारा, व्हाइट लाइट आए बाद क्या करता है, लाइट तुम्हारा स्प्लिट करता है, बराबर है। तो सेम वे ये भी क्या करता है, व्हाइट लाइट आए बाद क्या तुम्हारा कलर आ रहा है व्हाइट, तो उसको क्या करता है तुम्हारा इसके वेवलेंथ के हिसाब से क्या होता है तुम्हारा सेपरेट होता है ना। एंड दैट हियर द फंक्शन, हाउ इट विल गोइंग टू फंक्शन नाउ, काम कैसा करिए देखो। व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट द इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, काफी दूर है, सपोज ये कीड़ा है ना, यहाँ पे ये है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो क्या कर रहा है तुम्हारा, यहाँ से ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे इसका बेंड टुवर्ड द नॉर्मल है ना, इसका डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पे लाइट बेंड होगा। फिर बाद में एक्चुअली यहाँ से लाइट जाना चाहिए है ना, एक प्यूपिल से। अभी इस फिगर में थोड़ा बहुत 19-20 होता है समझने के लिए देखो। तो लाइट आ रहा है, तो लाइट की जो इंटेंसिटी कितना होना है, कितना कम होना है, जितनी ब्राइटनेस होना है उतना ही लाइट क्या करेगा, अपने आंखों में से एब्जॉर्ब करेगा, है ना। उसका काम, किसका काम है तुम्हारा, जो एरीज के जो कलर दिखाता है ना, वो क्या करता है, कुछ लाइट अननेसेसरी लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, नहीं तो फिर रिफ्लेक्ट करता है ना। आंखों का कलर जो दिखता है अपने को, जैसे काले आंख होती है, भूरे आंख, नीले आंख बोलते हैं ना अपन, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एरीज, है ना। और वो क्या करता है, कुछ लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कुछ लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने की वजह से अपनी आंखों का कलर दिखता है, बराबर। जितना लाइट जरूरी है अपने आंखों को, जितनी इंटेंसिटी जरूरी है, उतना ही लाइट क्या होगा अपने आंखों में से। इसमें कैनल होता है, यहाँ पे कैनल यानी क्या है, एक पाइप समझो, एक एम्प्टी स्पेस होता है, वो तो एम्प्टी स्पेस होता है। यहाँ पे ह्यूमस होता है, दो यहाँ पे रिफ्लेक्ट इंडेक्स हो गया, यहाँ पे एक्वायर्स ह्यूमस हो गया, यहाँ पे लाइट बेंड हो गया, फिर बाद में ये लेंस में भी लाइट बेंड हो गया, है ना। और यहाँ पे भी लाइट क्या है तुम्हारा चेंज हो रहा है, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो रही है, ये वेटरल ह्यूमरस में, है ना। तो ये तीनों भी फोकल लेंथ क्या, इसमें सब तीनों भी एडजस्टेबल है। ये भी पूरा वाटर ही है, कौन सा, एक्वायर्स ह्यूमरस पूरा वाटर ही है, पूरा पानी पानी है। यहाँ पे लेंस को एडजस्ट करने वाला कौन है तुम्हारा, सेलेस्टियल मसल्स, होल्डर मसल्स, इसको खींच के और नीचे करके क्या कर इसे एडजस्ट कर ले रहे हैं, है ना। और यहाँ पे भी क्या है, विट्रल ह्यूमर से, यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे भी एडजस्ट कर रहे। एनी हाउ किसी भी तरह से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का जो फोकस है कहाँ पे आता है तुम्हारे, रेटिना पे ही आता है। ऑलवेज विल बी द ऑन रेटिना। और रेटिना पे इमेज कैसे तैयार हुई आपकी, इमेज कैसे तैयार हुई आपकी, रियल एंड इनवर्टेड, समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहीं पे भी रहने दो, अभी ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है, तो इसका मतलब क्या अपन कंसीडर करेंगे, सपोज यू इक्वल सपोज इन्फिनिटी, आप लोग दूर का भी ऑब्जेक्ट दिखता है ना, अपन वी कैन एबल टू सी द स्टार्स, मून, ये बहुत दूर के ऑब्जेक्ट है। इसका क्या है, दूर के ऑब्जेक्ट भी आते हैं तो क्या इसका फोकस कहाँ हो रहा है अपने, एग्जैक्टली रेटिना पे हो रहा है। वो टाइम पे क्या होता है, होल्डर मसल्स क्या होते हैं तुम्हारे यहाँ पे खींचे जाते हैं। इसका क्या काम है तुम्हारा, लेंस का काम क्या कर रहा है तुम्हारा, इधर खींचने के बाद में क्या हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका साइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा चपटा हो जाएगा, बराबर है। इसका साइज क्या हो रहा है, चपटा हो रहा है, और एग्जैक्टली तुम्हारे क्या है इस पर फोकस पे क्या कर रेटिना पे आ रहा है, तो फिर बाद में ऑप्टिकल पे से आपको चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यू इन्फिनिटी भी होता है, तो वी कहाँ पे आएगा आपका 2.5 सेंटर में, है ना, 2.5। इसका हमेशा जो इसका जो डायमीटर जो है, आइडियल डायमीटर अपन क्या कंसीडर करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, इस टाइप की लाइट में भी कौन से काम करते हैं, है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। अभी ये कौन सा कलर है, येलो कलर है, ब्लैक कलर है, जब आपको कलर रिकग्नाइज हुआ, इसका मतलब क्या है तुम्हारा कौन से काम कर रहे हैं। डिम लाइट का मतलब क्या, अंधेरे में आपको कलर रिकग्नाइज होता है क्या, नहीं होता है। जब खाली सेंसिटिव कैपिंग आपको समझ में आता है, कोई तो है स्ट्रक्चर, कोई तो है, अपने उसने कैसा ड्रेस पहना है ये समझ में आता है क्या अपने को, नहीं, कुछ तो स्ट्रक्चर रहा, कुछ तो कुछ इमेज हुए कि कोई तो क्या आ रहा है, अपने को समझ में आता है। लेकिन उसने कौन सा ब्लू ड्रेस पहना है, ब्लैक शर्ट पहना है, रात में समझ में आएगा क्लियर, अपने को नहीं समझ में आएगा, है ना। तो ये डिफरेंस बहुत डिम लाइट में, हाँ थोड़ा बहुत लाइट कम होगा, इंटेंसिटी कम होगी तो वी कैन आइडेंटिफाई,
बट बहुत डिम लाइट में वो नहीं समझ में आएगा। ओके तो देखिए अब ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स, वही बताया अभी फंक्शंस ऑफ दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट्स एट द इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या कर दो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो सेलेस्टियल मसल्स क्या करिए, उसको ऑब्जेक्ट को खींच दिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पे खींच के क्या होगा तुम्हारा लेंस, क्या होगा तुम्हारा फ्लैटन हो गया। लेंस फ्लैटन होकर क्या है तुम्हारी इमेज कहाँ पे है आपकी, एग्जैक्टली रेटिना पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नजदीक है ना। अपन बहुत नजदीक से पढ़ सकते हैं क्या, कभी आप ट्राई करिए क्या, नहीं। तो अपने लिए भी क्या है, एक्चुअली इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन एज टू एज पे डिपेंड करता है। बट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वी आर कंसिडरिंग द DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, इसे क्या बोलते हैं अपन, कंसिडर करते हैं अपन 25 सेंटीमीटर। कितना कंसिडर करते हैं अपन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए। छोटे बच्चे जो होते हैं आपके एज के बच्चे जो है, आपसे छोटे बच्चे जो है सपोज, तो वो 18 सेंटीमीटर तक भी देख सकते हैं। जैसे एडल्ट हो गए 20-25 साल की उम्र है उनके लिए 25, 40 के बाद में उनको डिस्टेंस तुम्हारा 50 के आसपास डिस्टेंस। अभी मुझे कभी कभी प्रॉब्लम आता है, मैं नजदीक से देख नहीं पाता हूँ, तो मुझे ऐसा देखना पड़ता है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट, डिस्टेंस विजन डिपेंड्स अपॉन द एज फैक्टर ऑल्सो। बट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वी आर कंसिडरिंग द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इज ऑलवेज 25 सेंटीमीटर। आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करना है तो आपको इतना ही रखना है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। हर एक की एज के हिसाब से आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मालूम होना है बस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे u क्या है आपका, u इज इन्फिनिटी, और v कितना है आपका यहाँ पे बोलो 2.5 सेंटीमीटर। 25 नहीं, 25 बोलो तो आँख बहुत बड़ी हो गई ना, है ना। 2.5 इतना है, इतना सा 2.5 सेंटीमीटर इतना सा, है ना जो आँख। और यहाँ पे क्या है, एट डिस्टेंस विजन बोलते u क्या हो गया यहाँ पर, u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। यहाँ पे है आपका डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। ये कंडीशन पे क्या है आपका DDV कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या है आपका DDV। और यहाँ पे v कितना हो गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे u माइनस है, इन्फिनिटी माइनस करो या प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे जो है सेलेस्टियल मसल से क्या करे, उसे पुश कर दे, है ना। पुश करने के बाद में क्या होगा तुम्हारा लेंस क्या होगा तुम्हारा ऐसा बॉल टाइप हो गया। बॉल टाइप तो इसका पावर ऑफ एक्टिवेशन बढ़ गया है, एडजस्टमेंट इसको क्या करना पड़ रहा है, एग्जैक्टली इट विल बी कन्वर्ज वेयर, इट विल बी ऑन द रेटिना। समझ में आ गया कैसा हो रहा है कन्वर्ज यहाँ पर। डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, अपन कितने इमेज से कितना दूर से, सॉरी कितना नजदीक से अपन क्लियरली पढ़ सकते विदाउट स्ट्रेस, है ना। अब मैं यहाँ पे बुक रखूंगा, पढ़ने आएगा मुझे नहीं, है ना। थोड़ा थोड़ा कहा है मुझे अप्रोक्सीमेटली ये 25 डिस्टेंस तक मुझे क्या करने का बड़ा बुक रखता हूँ, तो मैं आई कैन रीड इजीली विदाउट एनी स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस नहीं आके मैं वो पढ़ सकूंगा। वो डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आपके लिए विजन के लिए जो डिस्टेंस सुटेबल है रीडिंग करने के लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो क्या है तुम्हारा विदाउट स्ट्रेस। कोई आपके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं आना, आंखों पे स्ट्रेस नहीं आना, वो उससे बोलते हैं अपन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके देखिए अभी यहाँ पे दिया देखो, आपको यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। फार पॉइंट्स एंड नियर पॉइंट्स ऑफ द आई। फार पॉइंट का है, अपन कौन सा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, वी कैन सी ऑब्जेक्ट एट टिल द इन्फिनिटी, है ना। यार अपन पिछले फिगर में देखे, अपन चांद भी देख रहे थे अपन, यानी बहुत दूर थे चांद स्टार्स, कुछ तो डिस्टेंस होगा, लेकिन फॉर अस वी कैन कंसिडर एज अ फार पॉइंट क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा इन्फिनिटी। बट नियर पॉइंट डिस्टेंस मैं बोला पर्सन टू पर्सन क्या है, हाँ अपने लिए यही याद रखना है, कितना 25 नियर पॉइंट डिस्टेंस। तो नियर से अपन कहाँ से नजदीक से देख सकते हैं, नजदीक से देखने के लिए इतना नजदीक रखे तो अपन पढ़ने आएगा क्या, नहीं पढ़ने आएगा, उसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो अब बहुत यहाँ पे भी रखते तो फिर स्ट्रेस आता है आंखों को। तो क्या है क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस, तो क्या है अप्रोक्सीमेटली 1 फीट। 1 फीट यानी कितना है तुम्हारी स्केल जो 30 सेंटीमीटर की होती है अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो उससे थोड़ा कम। तो क्या अपना डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, और उसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। जनरली ये कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर। इसके बारे में याद रखो आप, है ना। एडल्ट 20 ईयर के रहने दो। अब यहाँ पे बताया एज अराउंड 40 के लिए 50 सेंटीमीटर है। बट ये क्या याद नहीं रखना है अपने को कितना याद रखना है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए एवरेज ओनली 25 याद रखना है ना। ये इन्फॉर्मेशन कर दिया है आपको। अभी एज 60 ईयर है, उसका 200 सेंटीमीटर और मोर, कोई जरूरत नहीं याद रखने का, है ना। 200 सेंटीमीटर वो तो 2 मीटर से पड़ेगा वो दूर से ही, है ना। तो इसने एवरेज बता दिया। सिर्फ आपने को कितना याद रखने का है, जस्ट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। यस देख सकते हैं उनको क्या ऑपरेट करना पड़ता है, उनको लेंस लगाते फिर वो, है ना। लेंस लगाते हैं तो फिर स्पेक्टेकल इस्तेमाल करते हैं, है ना, स्पेक्टेकल इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड।
देखिए, तो यहाँ पे क्या है अभी इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, ये अपन कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी आंख, जैसा मैंने बताया आपको, दूर का ऑब्जेक्ट भी देख सक रही है और नजदीक का ऑब्जेक्ट देख सक रही है ना। तो उससे क्या करते हैं अपन, पावर ऑफ एक्लमेशन, एडजस्ट करने की ताकत है ना। तो यहाँ पे क्या करिए आपकी, आप क्या करिए, तुम्हारी इज गोइंग टू एडजस्ट। कैसे बने दो, ये बॉल तुम्हारा नजदीक है तो भी क्या करा तुम्हारे, इसने एडजस्ट करा बराबर, कहाँ करा, फोकस पे, है ना। और तुम्हारा यहाँ पे मून था, स्टार था, है ना, तो इसका भी कहाँ इमेज बराबर एडजस्ट करा एग्जैक्टली और द फोकस। तो इसमें क्या करना पड़ा उसे, उसको क्या करना पड़ा, यहाँ पे सेलेस्टियल मसल्स को क्या करना पड़ेगा, आपके लेंस को खींचना पड़ा और लेंस को क्या करना, ब्लश करना पड़ा। उतना ही करने से क्या होगा तुम्हारा, उसको दूर का भी ऑब्जेक्ट दिख रहा और नजदीक का भी दिख रहा। उससे एडजस्टमेंट को क्या कहना है अपने को, अकोमोडेशन यानी एडजस्टमेंट ओनली, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस। तो वो लेंस क्या कर रहा है तुम्हारा, दूर का भी ऑब्जेक्ट देख सक रहा है और नजदीक का भी ऑब्जेक्ट देख सक रहा है। उसके प्रॉपर्टी को क्या बोलना है आपको, एक्लमेशन। समझ में आ गए। उसमें क्या कर रहा है तुम्हारा, सेलिस्टेड मसल का बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अबे हाउ द एज इज गोइंग, है ना, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो क्या मसल्स तुम्हारे थोड़े से वीक होते हैं, ये मसल्स क्या होते हैं तुम्हारे थोड़े से वीक होते, तो फिर क्या कर सकते, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते और ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं कर सकते। उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है कम होने से क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी, दोनों भी प्रेस बाय पे है जो है ना, बोल रहे थे आप। तो जो ओल्डर एज पीपल क्या है, बहुत दूर का भी देख नहीं सकते और बहुत नजदीक का भी देख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है लेंस, उनका लेंस अच्छा है उनका, लेकिन वो मसल्स लूज हो गए, मसल्स वर्किंग कर करके क्या हो गया, मसल्स तुम्हारे अकाउंट लेंस लूज हो गए, इसलिए क्या उनको एडजस्टमेंट, उनका एक्लमेशन क्या हो गया, उनका कम हो गया। नाउ हियर पावर ऑफ एक्लमेशन ऑफ द ह्यूमन आई, अभी पावर निकालना है। पावर पता है आपको, पावर क्या होता है, 1/f इन मीटर, है ना। तो पावर ऑफ एक्लमेशन ऑफ द लेंस, अभी देखेंगे अपन, इसमें दो कंडीशन है। कौन से कंडीशन से, पहली कंडीशन कौन सी थी, एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, है ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे अपना फोकस पे है, बराबर है, सॉरी फोकस पे नहीं है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे है। फॉर्मूला क्या है अपना, है ना, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बराबर है। तो v कहाँ पे आ रहा है अपना, पहले कंडीशन करेंगे फार फार डिस्टेंस की करेंगे अपन, फार पॉइंट, फार पॉइंट यानी क्या है तुम्हारा, u क्या लेना है आपको, वहां पर इन्फिनिटी लेना है ना। तो इफ u इक्वल्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे, है ना। v कहां पे आ रहा है आपका, 2.5 सेंटीमीटर पे आ रहा है, बराबर। तो यहां पे डाल दो वैल्यूज, तो 1/f 1/2.5 सेंटीमीटर है, बाद में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस 1/1 इन्फिनिटी इज अ 0, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस आता है यू ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो चलो कुछ में जीरो होता है, जीरो ऐड करो या माइनस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा तुम्हारा, अभी यहाँ पे 1/f, f इक्वल्स टू 1/2.5 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 करूँ क्या, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 करता हूँ, तो फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, 1000 डिवाइड बाय 2500, बराबर है। अब ये सेंटीमीटर में है, अभी मीटर में करे बाद क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या है सेंटीमीटर में, अब मीटर में कैसा हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 25 मीटर, बराबर है। फोकल लेंथ किस में आ गया आपके, अभी समझ में आ गया। तो अभी डिवाइड कर दो, 24 1 24, 24 4 जा, बराबर है। तो फिर फोकल लेंथ कितना है आपका, पावर कितना है, सॉरी गलत कर दिया क्या मैं, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, यहीं से देखिए था 100 ही कर देंगे, है ना। 1/f इक्वल्स टू 1/2.5 प्लस 0, चलो उसको छोड़ देंगे अभी। 2.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 1/f 100 डिवाइड बाय 2.5, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 100 करा डिवाइड बाय 100 करा, क्योंकि मालूम कि आपको यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे चलो यहाँ पे भी 100 कर दिया। तो अभी क्या है तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 करता हूँ मैं, तो कितना आएगा, तो क्या होगा तुम्हारा, जो भी आएगा वो मीटर में होगा, है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 0.100 डिवाइड बाय 250, बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 250। हाँ, अभी देखो ये 250 क्या है तुम्हारा, ये सेंटीमीटर में है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको
मीटर में, तो कितना आएगा तुम्हारा 0.25 इक्वल्स टू 100 2.5 आएगा 2.5 मीटर, बराबर है। आप डिवाइड कर दो तो कितना आएगा फिर, तो 25 1 25 25 4 तो कितना आ गया 40, है ना। तो 1/f कितना आ गया आपका 40। तो पावर कितना होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो पावर कितना आ गया आपका 40 डायोप्टर्स, बराबर है। हाँ 1/∞ यानी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है समझो, कोई भी नंबर है 1/10 कितना हो रहा है 0.1, 100 कितना हो गया 0.01, 1000 0.001। तो इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा नंबर है नीचे, तो बहुत बड़ा नंबर, इसका मतलब क्या है 0.00000 कहीं तो भी आता होगा, है ना। तो इसलिए क्या कंसिडर, अप्रोक्सीमेटली क्या कर रहे हैं अपन उसे 0 कंसिडर कर रहे हैं, समझ में आ गया। इन्फिनिटी इसका मतलब डिनोमिनेटर काफी बड़ा है आपका, काफी बड़ा है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए क्या करें 1/∞ वी आर कंसिडरिंग एज अ 0, समझ में आया क्या। अप्रोक्स इन्फिनिटी भी, अप्रोक्स इन्फिनिटी के भी एग्जिस्टेंस में है क्या, इन्फिनिटी का है क्या, अपन बोले चांद का डिस्टेंस अपन को पता है, कुछ तो कुछ डिस्टेंस है, लेकिन अपन कंसिडर क्या करें, इट विल बी ऑन इन्फिनिटी। सन का भी डिस्टेंस कुछ तो है, अपन कंसिडर कर रहे हैं क्या है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है ना। इन्फिनिटी कोई चीज एग्जिस्टेंस में है नहीं, है ना। इसलिए मैं बोला आपको, जब भी बोला इमेज क्या है एग्जैक्टली फोकस पे आएगी क्या, नहीं, कैसे आएगी, तुम्हारी इमेज आ रही है फोकस के और तुम्हारे सेंटर के बीच में इन्वर्टेड इमेज आ रही है, छोटी इमेज आ रही है, हाईली डिमिनिश आ रही है, लेकिन इमेज आ रही है ना, पॉइंट नहीं आ रहा है ना, तो उसी तरह से समझे, है ना। तो यहाँ पे क्या इसका फर्स्ट कंडीशन में क्या आ गया, पावर का कितना आ गया इसका 40 डायोप्टर्स। अभी नेक्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं आप एज अ डिस्टेंस विजन से दिख रहे हैं, नियर विजन से, है ना। तो नियर विजन से देखते समय मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नियर विजन से देखो सेम फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ u कितना हो गया आपका -25 सेंटीमीटर, बराबर है, v कितना हो गया ऑलवेज 2.5, रख दो फॉर्मूला में 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है 2.5 माइनस माइनस क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, बराबर। हाँ तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो क्या करता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ मैं, तो क्या हो गया तुम्हारा इम्प्लाइज ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ क्या चाहिए अपने को ऑलवेज इन मीटर। तो 1/f इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 2.5 प्लस 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1/100 डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो तो यहाँ पे क्या कर दिया अपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पर, नहीं। तो फिर इसे कैसा लिख सकते हैं अपन 100 डिवाइड बाय, अभी 2.5 इंटू 100 कितना आ रहा है 250 प्लस 100 डिवाइड बाय कितना है 25, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते फिर अभी, चलो यहाँ पे एवरेज 0 लेता हूँ मैं, है ना। तो अब इसको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दो, कैसा हो गया इसमें, अभी ये क्या है सेंटीमीटर में आ गया, अपने मल्टीप्लाई करे डिवाइड कर दिए, अभी इसको कन्वर्ट करे बाद क्या हो जाएगा ये 25, है ना। कौन सा कन्वर्शन नहीं समझ में आ रहा क्या, देखो कौन सा 25 into 100, देखो यहाँ समझ में, यहाँ तक समझा, हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझा क्या, हाँ देखो। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने 1 मीटर, करेक्ट है। हाँ तो अभी देखो अभी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 1/100 मीटर, है ना। तो अभी 2.5 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर कितने मीटर हो गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर कितना आता है, हाँ इसको इधर कर दो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2.5, इसको कन्वर्ट कर दिया मैं, है ना 2.5 इसको कन्वर्ट कर दिया इधर, कुछ भी नहीं तो अभी यूनिट कुछ भी आएगा समझो। अभी क्या करना है मुझे सेंटीमीटर के जगह क्या लिखना है मुझे 1/100 लिखना है, बराबर है 2.5 इंटू 1/100 मीटर, बराबर है क्या 75, देखो 2.5
सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 1/100 मीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 1/100, तो कितना हो गया फिर ये 2.5 डिवाइड बाय 100, ये मीटर में आ गया। हाँ, उसको अभी 2 जीरो है तो इधर कितने, इधर 2 जीरो शिफ्ट हो जाएंगे, कितना होगा फिर ये 0.025, बराबर है क्या, ये आ गया फर्स्ट केस। ऐसा करो, सेकंड केस में कितना आ रहा है आपका 1/25 है ना, 25 सेंटीमीटर ने कितना हो रहा है, इसको कन्वर्ट कर दो, कितना हो रहा है 25 सेंटीमीटर, 25 डिवाइड बाय 100 मीटर, तो कितना हो गया है 1.1/4, तो फिर इसको 0 पॉइंट कर दो, इसको भी वैसा मत करो, इसको क्या होगा तुम्हारा 25/100 मीटर, कितना समझ में आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे आप 0.25 मीटर, है ना, तो यहाँ पे 0.025 मीटर आ गया और यहाँ पे क्या 0.25 मीटर आ गया। फॉर्मूला क्या है अपना 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, डाल दो इसमें 1/f इक्वल टू 1/v, v कितना है आपका 2.5, वो तो ये 1/0.025 करेक्ट है मीटर, माइनस माइनस प्लस 1/0.25, सही है। आप क्या करते हैं पॉइंट एलिमिनेट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता है, 1000 से डिवाइड करता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करता है, तो 1/f कितना आएगा 1/f इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 25 प्लस 100 डिवाइड बाय 25, बराबर है क्या, तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में क्या करेंगे अपन सीधा सीधा एडिशन कर सकते हैं, तो एडिशन करने के बाद क्या आएगा 1/f इक्वल टू 1100 डिवाइड बाय 25, 25 4 जा 100, कैरी कितना बचा 10, 25 4 जा 100, तो f 1/f कितना आ गया 44, तो पावर कितना आ गया उसका 44 डायोप्टर्स, तो फर्स्ट कंडीशन में कितना है आपका पावर ऑफ 44 एंड 40, तो एवरेज क्या निकाले अपन पावर ऑफ एक्टिवेशन कितना है तुम्हारा, एक्टिवेशन एडजस्ट करने का, दूर का भी अपन देख सक रहे हैं और न पास का भी देख रहे हैं, दूर का देखने के लिए क्या है अपना पावर ऑफ एक्टिवेशन कितना है अपना 40, नजदीक का देखने के लिए कितना है तुम्हारा 44, तो कितना एडजस्ट कर रहा है वो डिफरेंस दोनों का, एक दोनों का डिफरेंस कितना है 44 माइनस 40 यानी 4, अपनी यहाँ 4 डायोप्टर तक क्या है इजीली ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, इन्फिनिटी से लेके नजदीक तो फोकस तक है, 4 डायोप्टर तक अपना आंखों का एडजस्टमेंट है, लेंस क्या कर सकते तुम्हारे शरीर से उतना खींच सकते हैं और उसको दबा सकते हैं, समझ में आ गया। हाँ देखिए अभी यहाँ पे व्हाई वी डू द 2 आइज, एक आंख से भी जब काम होता है तो फिर 2 आंख की क्या जरूरत है आपको, क्योंकि 2 आंख, हाँ वेरी गुड, तो पूरा विजन देखने के लिए एक आंख से आप खाली अराउंड 150 देख सकते हैं, और वी कैन आइडेंटिफाई द प्लेन, प्लेन यानी पता है आपको, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो अपन आप एक आंख से आप देखो अभी करके, एक आंख से देखो, आप ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो, आप इसका प्लेन चेंज हो जाता है, देखिएगा अभी आप ऐसा हाथ दूर रखो, एक आंख से देखो इसे, हाँ कहाँ दिख रहा है, और ये आंख से देखो तो उसके प्लेन चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल व्यू कहाँ देखना है आपको, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट कौन से प्लेन में है, उसका कितना डिस्टेंस है देखने के लिए क्या है आपके 2 आंख रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ऑब्जेक्ट का जो व्यू जो है 3 डायमेंशनल उसका डिस्टेंस कितना है और कौन से प्लेन में है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस समझने के लिए तुम्हारी आंखों 2 आंखों से आपको इजीली डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। ह्यूमन बींग्स हैज हॉरिजॉन्टल व्यूज ऑफ अबाउट 150 डिग्री, एक आंख से आप कितना देखते हैं 150 देखते हैं, फिर वो सर ये 150 153 से 100 क्यों नहीं हुआ, है ना, एंगल बहुत कम है, तो 2 आंख से कितना देख सकते हैं अपन अराउंड 180 तक अपन देख सकते हैं, है ना, यहाँ से और यहाँ से, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा भी आता होगा रेंज हर एक का, है ना, 180 से ज़्यादा भी आता होगा, आप देखते होंगे ऐसा देखते तो मुझे अभी यहाँ पे मैडम भी दिख रहा है और यहाँ से देखते मुझे डोर भी दिख रहा है, बोले तो मैं यहाँ पे आगे खड़ा हूँ, बट एवरेज अपन बहुत इजीली देखने के लिए अभी मेरी हॉरिजॉन्टल क्या है तुम्हारा ये जो कंप्यूटर बोर्ड और यहाँ पे डोर है, तो ये 180 तक अपन इजीली देख सकते हैं विदाउट स्ट्रेस, किसी का उतना होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आवर आइज स्प्रेड बाय द फ्यू सेंटीमीटर्स, है ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ सेंटीमीटर्स तक ही है, किलोमीटर तक नहीं है, किलोमीटर तो और ज़्यादा देख सकते थे अपन, यहाँ से और यहाँ से भी देख सकते थे। Of eyes in the slightly differs of the image, our brains combine the 2 image into one and using the extra informations tells close and away the things, कितना दूर है कितना नजदीक है, 3 डायमेंशनल फिगर आ गया, है ना, एक आंख से अपन एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, दोनों का व्यू आ रहा है,
तो कहाँ पे दोनों एक टच हो रहे हैं, तो उससे आप लोग का डिस्टेंस समझ में आ रहा है। ट्रायंगल बन रहा है अपने आंखों का, और ये छोटा ट्रायंगल ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल से आप लोग समझ में आ रहा है क्या आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मैथ्स में पढ़े होगे आप, है ना। तो उसकी वजह से आप लोग को डिस्टेंस समझ में आ रहा है। यहाँ से डिस्टेंस क्या करते हैं, उसका मीडियन तक अपन डिस्टेंस लेते हैं, तो डिस्टेंस समझ में आ रहा है कौन से प्लेन में है ना। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, आगे होगा वो द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड हाउ फार एंड कीप्स बोथ द आईज आर ओपन प्रोवाइड्स द 3 डायमेंशनल डेप्थ। तो 3D भी आपको इमेज दिखता है, इमेज का दिख रहा है आपको 3 डायमेंशनल्स, है ना। नहीं तो आप लोगों को लगता है कि इमेज तुम्हारा प्लेन ही है, फ्लैट फोटोग्राफी से दिखेगा, क्योंकि अपन प्लेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो प्लेन रिकॉग्नाइज नहीं करे बाद कैसे दिखेगा, इमेज तुम्हारा एकदम फ्लैट दिखेगा, एक ही प्लेन में दिखेगा। तो प्लेन में इमेज दिखने के लिए आगे कौन सा है पीछे कौन सा है देखने के लिए भी क्या है, अपनी 2 आंख जरूरी है ना। आप अभी देखेंगे सर मुझे दिख रहा, बोलेंगे प्लेन में नहीं दिख रहा, अभी आपके दिमाग ने सेंस कर लिया है एक्चुअली अभी, है ना। देखिए और इसमें और एक इसमें शायद नहीं पता है, यहाँ पे 2 आंखों क्या है तुम्हारे जो डिफेक्ट जो होते हैं, है ना। सपोज ग्रिल है, यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा है इमेज है ना। तो एक आंख से कैसे दिखेंगी इमेज आपको, ये इस तरह से कर्व दिख सकते हैं, इस तरह से अंदर से कर्व आ सकते हैं, या तो फिर बाहर से भी आ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी आपके डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली तुम्हारे एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर दिखेंगे ना, थोड़ा सा ब्लज और थोड़ा सा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कैसा हो सकता है। एग्जैक्टली तुम्हारे को प्लेन में दिख रहा है ना इमेज, प्लेन में दिख रहा नहीं, यानी कि तुम्हारे ऐसे डिफेक्ट तुम्हारे तैयार हो सकते हैं। Let me discuss few questions. The human eye is one of the most valuable and sensitive organs that enables to see the सभी very good all of this, है ना। तो it's like camera also can be identify the objects and enables to see the wonderful words of the colorful words. Next one, when the light rays enters the eye, the most of the refraction occurs on the, देखो ज्यादा रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, सबसे पहले कहाँ आ रहा है तुम्हारा एयर से एक्वस ह्यूमर में, है ना। तो वही क्या कर रहा है, रे को ज्यादा बेंड कर रहा है, फिर उसका रिफ्रैक्ट, इसका देखो यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, फिर इसका रिफ्रैक्टिव कितना है तुम्हारा 1.3 है, इसका रिफ्रैक्टिव कितना है 1.4 है, थोड़ा बेंड कर रहा है। डिफरेंस देखो इसमें 1 और 1.3 में कितना डिफरेंस है, 0.3 का है ना। अप्रोक्सीमेटली अपन एयर का कंसिडर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, स्पीड यहाँ पे कितना 1.3 है ना, 0.3 है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 0.1 का है, बराबर है। इसका डिफरेंस यहाँ पे फिर से कितना है तुम्हारा 1.3 अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली 3.6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ज़्यादा बेंडिंग कहाँ पे हो रहा है आपका फर्स्ट पार्ट में, है ना। फर्स्ट पार्ट में जब लाइट आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा द आउटर सरफेस ऑफ द कोर्निया इज करेक्ट, आउटर सरफेस पे हो रहा है तुम्हारा, है ना। जहाँ से तुम्हारा कोर्निया का जो आउटर सरफेस है ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पे लाइट आ रहा है एयर से डायरेक्ट तुम्हारे एक्वायस ह्यूमरस में जब लाइट है, उसके बाद आउटर कोर्निया यहाँ पे जो है ना अपर पार्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, वहीं पे क्या हुआ सबसे ज़्यादा तुम्हारा लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट वन, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट द डिफरेंट डिस्टेंस बाय द एडजस्टिंग, एडजस्टिंग का मतलब भी क्या है पता है आपको, पढ़ने का काम ही नहीं है ना। एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस एज दिस ड्यू टू द एक्यूमुलेशंस, है ना। 44 फार का भी कर रहा था और नजदीक का भी है। अपना ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एडजस्टमेंट कितना है 4 डायोप्टर्स। The next one, the human eye forms the image of an object it's on retina. retina by image आ रही है, कैसी आ रही है इमेज, ऑलवेज इन्वर्टेड डिमिनिश रियल वन, है ना। हमेशा इमेज रेटिना पे आ रही है। कभी कभी डिस्टेंस ही पूछा है तो आपको याद होना चाहिए, वी कितना होता है तुम्हारा ऑलवेज 2.5 सेंटीमीटर। हाँ डिफेक्ट हो तो फिर क्या है, डिफेक्ट कितना 1 सेंटीमीटर का होगा क्या, नहीं होगा, 0.01 का डिफेक्ट होगा। आईबॉल कितना है आपका 2.5 का ही है ना, डिफेक्ट भी हुआ तो कितना हो जाएगा 2.6 तो नहीं होगा, है ना। 2.6 भी हुआ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैं पहले ही बताया रेंज कितना है आपका, छोटे बच्चों का 2.3 से लेके 2.5 या 6 के बीच में होता है। तो अपन एवरेज क्या लेते हैं इसका 2.5 लेते हैं, कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं ले रहे अपन, अप्रोक्सीमेटली 2.5। हर एक ह्यूमन बीइंग का भी अलग होता है एक्चुअली। इसमें तो कलर सेंसरी ऑर्गन भी सबके अलग होते हैं हर एक के।
अभी जो हर एक का जो एरीज का कलर भी अलग होता है, क्योंकि हर एक की आंख जितना लाइट एब्जॉर्ब करेंगी उतना ही मैंने, अभी आपके सब दिमाग ने बताया आपको, ये शायद मेरे ख्याल से कैसा दिख रहा है आपको, ये नाम कैसा दिख रहा है आपको क्वेश्चन का साइड हेडिंग, आपका येलो दिख रहा है, एक्चुअली आपके दिमाग ने उसे येलो रीड किया है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा मुझे दिखना जरूरी नहीं है, पर मेरे दिमाग ने भी इसको बचपन से क्या पढ़ा है, ये कलर क्या है, येलो है, येलो है, येलो है। एक्चुअली आपका विजन थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, पर आपके दिमाग ने इसे क्या पढ़ लिया है, ये कलर येलो है, क्योंकि अपनी रेंज क्या है तुम्हारी, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करूं मैं, है ना, तो ह्यूमन बीइंग की रेंज क्या है तुम्हारे R टू वॉयलेट, है ना, तो हर एक की डिपेंड करता है, हाइट पे भी डिपेंड करता है, पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारे हर एक की रेटिना पे भी तुम्हारे कितना लाइट तुम्हारा एब्जॉर्ब हो रहा है, रेटिना में तुम्हारे कितने सेल्स एक्टिवेट है, उस पर भी क्या है तुम्हारा कलर आइडेंटिफाई होता है ना। पर अपना दिमाग क्या करता है, आप बचपन से आपने बोले ये क्या ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक है, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है, आपका टी शर्ट कलर कौन सा है, ब्लैक है, आपके दिमाग ने उसे ब्लैक रीड कर लिया है ना, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता ही है, लेकिन आपके दिमाग ने वैसा ही उसे रीड कर लिया है। समझ में आ गया? आगे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन रेनबो का, है ना, आप बोलते रेनबो के सब कलर है, अभी हर एक की जो कलर जो है रेनबो के कलर हर एक के एंगल से, आंखों के एंगल से तैयार होते हैं, अभी हर एक का आंखों का एंगल अलग होगा, है ना, दो तरीके के रेनबो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो हर एक के हॉरिजन से जो एंगल है 40 से लेकर 42 डिग्री तक तुम्हारा फर्स्ट प्राइमरी स्पेक्ट्रम दिखता है, सेकेंडरी स्पेक्ट्रम 50 to 53 के हिसाब से। तो अभी छोटा बच्चा है उसकी हाइट अलग, बड़े बच्चे की हाइट अलग, उसका एंगल अलग, उसका एंगल अलग, लेकिन वो लेंथ के हिसाब से ये डिस्टेंस बहुत माइनर है ना, इसलिए उन्हें भी क्या दिखाता, उंगली दिखाता, वो ऊपर का रेड है नीचे का अपन समझ लेते, वो एग्जैक्टली वही पॉइंट पे नहीं जाते अपन, है थोड़ा बहुत उसके लिए अपना दिखने का लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए द एबिलिटी ऑफ आई लेंस एडजस्ट द फोकल लेंथ from the sharp image of the objects at varying distance of the retina is called power of acclimation. Same question there. The next one, the least distance of the visions of the young adults, यहाँ पे mention क्या है young adults का, with a normal vision is about कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। बच्चे क्या करते कभी कभी गड़बड़ में कर देते कि उनको समझ में आता है कि आंखों का आईबॉल का डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, वो नहीं, उसने पूछ रहा क्या है तुम्हारा डीडीवी के बारे में पूछ रहा है ना, डीडीवी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये देखो ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसलिए क्या शॉर्ट में बोलते डीडीवी। नेक्स्ट देखिए, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शंस ऑफ द सिलेरी मसल्स। तो मसल्स क्या कर रहे तुम्हारे, इसको लेंस को क्या कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको खींच रहे, फ्लैट बना रहे हैं, है ना, यहाँ पे दबाई तो क्या ब्लज बन गया, और यहाँ तो खींचे तो फ्लैट बन गया, तो इसकी वजह से क्या तुम्हारा सिलेरी मसल्स क्या करे एडजस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है तुम्हारा होल्डर मसल, इसका होल्डर, उसको होल्डर भी बोलते हैं, वही क्या करता है लेंस को होल्ड करके रखता है, और वही क्या करता है खींचता है, और वही उसको प्रेस करता है। नेक्स्ट वन, the focal length of eye lens increase when the eye muscles, अभी इंक्रीज कब हो रहा है देखो, फोकल लेंथ इंक्रीज कब होगा, जब अभी समझो जो तुम्हारा जो ऐसा फ्लैट होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, फोकल लेंथ ऐसा होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, ऐसा क्या, तो यहाँ पे जल्दी कॉन्वर्ज हो रहा, और यहाँ पे तो कॉन्वर्ज क्या हो रहा तुम्हारा, यहाँ पे तो ये लेंथ है ना ये बढ़ गई, ये लेंथ क्या है तुम्हारी छोटी है, तो कब हो रहा है अब फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज, इंक्रीज कब होगा जब मसल्स क्या करेंगे आपको उसको खींचेंगे, इसे क्या करेंगे छोटा बनाएंगे, डी ना, द कॉन्टैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिनर, कॉन्ट्रैक्ट, ओके हाँ, द सिलियर मसल्स विल गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, द मसल्स आई मसल्स गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, आई मसल्स खींच ले रहे उसे, और उसको क्या बना रहे उसे छोटा बना दे रहे, समझ में, यहाँ पे खींच ले रहे उसको, यहाँ पे उसको दबाया यहाँ पर। द नेक्स्ट वन समरी, तो क्या देखे अपन यहाँ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन आई में, जस्ट एक्सटीरियर पार्ट्स है ना, तो क्या है तुम्हारा वर्किंग ऑफ दैट द सिलियरी मसल्स, द एरीज, कॉर्नियाज, द एक्वायस ह्यूमर्स, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे अपन ने, और क्या देखे उसका एक्रोमेशन पावर ऑफ एडजस्टमेंट देखे ना, एक्रोमेशन कितना होता है ये देखे अपन ने, और होमवर्क के लिए दिया है आपको, चलो
प्रैक्टिस नीड्स एंड क्लीन लेवल डायग्राम्स ऑफ ह्यूमन। अभी एक्चुअली सीबीएसई के हिसाब से आपको डायग्राम की निकालने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एज पर नॉर्म्स ऑफ द सीबीएसई क्या करेगा, सीबीएसई क्या करेगा, आपको डायग्राम ऑलरेडी दे देगा, वहां पे नंबर्स देगा 1 2 3 4 ABCD, उसको लेबल करना पड़ेगा, है ना। वो पहले के सिलेबस में था, पहले सिलेबस में कैसा था, स्टेट बोर्ड में वगैरह जो भी थे पहले के जो स्टूडेंट्स को ड्रॉ डायग्राम होते उनको क्या करना पड़ता था, डायग्राम एग्जैक्टली ड्रॉ करना पड़ता था। तो भी रफ ड्रॉ कर सकते हैं आप, पूछा भी समझो तो क्या करना है, बॉल है यहाँ पे रेटिना का निकाल दो, है ना, यहाँ पे इसके ये ऑप्टिकल्स, ये तुम्हारा डायग्राम सिंपल है, रफ डायग्राम भी आप निकाल के उसको लेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा पीपल बता दो, यहाँ पे एरिस कोर्ना, यहाँ पे मसल्स, है ना, थोड़ा बहुत ऐसा रफ डायग्राम है। पेंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है अपने को, है ना। सिलेरियल मसल्स यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा बता के सिलेरियल मसल्स हो गए, है ना, ये तुम्हारा ऐसा थोड़ा सा ये पार्ट तुम्हारा ऐसा निकाल के आप डायग्राम निकाल सकते हो। डायग्राम सीबीएसई में डायग्राम बंद कर दिया उन्होंने, कोई भी सब्जेक्ट का डायग्राम नहीं आएगा, इवन बायोलॉजी के लिए भी डायग्राम नहीं आएगा। अमीबा आया था क्या, अच्छा, तो अमीबा का फिगर कैसा है पता है आपको, उसका फिगर कैसा भी निकालो, है ना, लेकिन मोस्टली कैसा है एक्चुअली, तो रे डायग्राम्स ये आएंगे, रे डायग्राम्स आएंगे, वेरी गुड, रे डायग्राम्स। अभी कौन से डायग्राम नहीं आएंगे जहाँ पे कि तुम्हारे आर्टिस्ट की जरूरत है ना, कि बच्चे बोलेंगे सर मेरा डायग्राम, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है इसलिए मेरे मार्क्स लूज हो गए, मेरा डायग्राम में बराबर निकाल नहीं सकता, है ना। आप देखते होंगे फीमेल चाइल्ड गर्ल्स बहुत अच्छा डायग्राम निकालते हैं, और बॉयज़ का मोस्टली बहुत रफ काम होते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, तुम्हारा मार्क्स में डिफरेंस नहीं आना, इसलिए क्या होता है, डायग्राम पूछे तो भी ऐसे पूछते हैं जो डायग्राम आप स्केल से निकाल सकते हो, जैसे रे डायग्राम स्केल से निकाल, अमीबा कुछ भी स्ट्रक्चर निकालो, गलत कर ही नहीं सकते उससे, है ना। तो ऐसे डायग्राम मोस्टली पूछते हैं। हाँ, लेबल आपको करना पड़ेगा, उसका न्यूक्लियस निकालना है ना, उसका वैक्यूल्स जहाँ भी है उसको पार्ट्स बताना है, रे डायग्राम्स की भी तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ह्यूमन आइज का डायग्राम आपको शायद नहीं आएगा, उसके लेबल्स पूरे याद करना पड़ेगा आपको, समझे। और देखो द एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ह्यूमन आई, तो इसका एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हाँ वो लिख दो आप, है ना, एवरेज निकाल दो, तीनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 3 कर दो, है ना। कितना था इसका 1.33 प्लस 1.4 प्लस 4 लिखो, चलो 40 लिखो, प्लस 1.33, एक्चुअली क्या है 336 है और 337 है, डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे 1.40 लिखो या तो 4.41 लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि रेंज है आपने 1.40 टू 1.42, कुछ भी लिखो आपको जो इजी लगता है, डिवाइड बाय 3 करो। यहाँ पे निकालना क्या पूछा उसने, एवरेज पूछा ना, एवरेज पूछा है, तो एवरेज मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 33 है तो 1.37 के आसपास आ जाएगा, 40 से कम 30 से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली कुछ तो भी, और 1.4 तो एवरेज नहीं आएगा क्योंकि 1.4 यहाँ पर है, देखो ना 1.4 यहाँ पर है, तो दोनों भी नंबर्स क्या है, कम है, कौन सा ये क्या 1.336 1.337 और 1.40 अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा मैं, एवरेज निकाला है, इसका एग्जैक्ट आंसर इसका भी नहीं आएगा, तो आप निकालो इसका प्लस 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 डिवाइड बाय 3, अप्रोक्सीमेटली सबका आंसर एग्जैक्टली सेम नहीं भी आएगा, है ना, 1.37 के आसपास आएगा, किसका 1.36 आएगा, खाली अप्रोक्स निकालना है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने क्या बताया एग्जैक्ट 1.40 बताया क्या आपने बुक्स में नहीं बताया, ये भी क्या बताया 1.42 तक भी बताया, है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट में लेते हैं आप 1.33 1.4 1.3, तो आपको एग्जैक्ट एवरेज आएगा। यहाँ पे 3 डिजिट में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं आप, नेक्स्ट डिजिट लेते हैं तो फिर वहां पे और डिफरेंस आएगा वहां पर, है ना। और द नेक्स्ट वन देखो, द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज, कितना है डायमीटर 2.5, है ना। डायमीटर ऑफ आई बॉल कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ द नीट डायग्राम्स ऑफ ह्यूमन आई, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है उसने, रेफर करो उसको, वो फिगर वाला अपना फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट या सेकंड था, कोई डिफिकल्टी आज के टॉपिक में, वेरी सिंपल टॉपिक था आज का, लेकिन जो अगला टॉपिक जो आएगा नेक्स्ट, तो वहां पे न्यूमेरिकल्स याद करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक ही याद रखना है आपको, क्या करना है, पावर ऑफ एक्टिवेशन याद सकते हैं, पावर पॉइंट पूछता है तो क्या लेना है आपको, यू क्या लेना है आपको, हम इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी लेना है, और नियर पॉइंट है तो यू क्या लेना है आपको 25 लेना है, हमेशा वी कितना है 2.5
5। बस यह फोकल लेंथ ही निकालने पूछते मोस्टली, इसमें क्या निकालने पूछिए, फोकल लेंथ पूछेंगे, फोकल लेंथ उसका पावर निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। गॉट इट? एनी डिफिकल्टी? देन वाइंड अप टुडे सेशन। ओके, थैंक यू।